یہ کہانی ہے سلطان کی۔ سلطان ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو سپر ہیرو بننے کا شوق ہے، جو سب کی مدد کرتا ہے، وہ سب کے دلوں پہ راج کرتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک سپر ہیرو کا کاسٹیوم لوں اور اس کا پہن کر سپر ہیرو بن جاؤں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، اس نے سپر ہیرو کا کاسٹیوم پہنا اور وہ سوچنے لگا کہ اب میں سپر ہیرو بن گیا ہوں، اب میں سب کو دکھا دوں گا کہ میں سپر ہیرو ہوں۔ پھر وہ باہر گیا، سارے محلے میں سب کو کہنے لگا کہ میں سپر ہیرو بن گیا ہوں، اور اس کا ڈوگی بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی ماں کو اس نے دیکھا کہ وہ بھاری سامان لے کر جا رہی تھی اور پریشان تھی، تو اس نے بولا کہ بوڑھی ماں لائیں یہ سامان، میں آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے سامان لیا اور گھر چھوڑ آیا۔ بوڑھی ماں نے کہا تم تو اصل میں سپر ہیرو ہو، اور سب کو دکھانے لگی، لوگوں یہ دیکھو، یہ ہے ریئل کا سپر ہیرو مین سلطان۔ یہ کہانی ہے ایک ننھے سلطان کی جو پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان کو ایک جادوئی غبارہ ملتا ہے، جس غبارے کے دھاگے کو پکڑ کر سب اڑ جاتے ہیں۔ وہ جادوئی جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جادوئی جنگل میں سب کچھ سونے کا ہے، اور وہ وہاں اس پری کو دیکھتے ہیں جو ان کو ملتی ہے۔ وہ سلطان سے کہتی ہے کہ آپ ادھر کیسے آئے ہو؟ اس نے بولا کہ یہ جادوئی غبارہ ہمیں اس دنیا میں لے آیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سارے درخت سونے کے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ یہ سارا سونا ہم لے جائیں گے یہاں سے اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ سلطان کی یہ بات سن کر اس کے دوست بھی بہت خوش ہوئے، اور وہ اپنے محلے میں گئے اور سب کی مدد کی۔ انہوں نے محلہ بہت خوبصورت بنایا اور پھر اپنے محلے میں کھیلنے لگے۔ وہ سب کی مدد کرتے تھے۔ سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد سب کہنے لگے، اور اس طرح سلطان بہت بہادر بچہ بن گیا۔ ایک بار کی بات ہے، جنگل میں کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے سارا جنگل خشک ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سارے جانور بہت پریشان ہو رہے تھے، تو سب جانوروں نے مل کر فیصلہ کیا کیوں نہ سلطان سے بات کی جائے، سلطان ہمارے لیے ندی کا پانی کھول کر لائے گا۔ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ لومڑی کو سلطان کے پاس بھیجتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ پھر لومڑی جا کر سلطان کو ساری بات بتاتی ہے، اور سلطان کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں ندی کا پانی کھولنے کے لیے۔ پھر سلطان جانے کی تیاری کرتا ہے، اور جب وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دوست جو کہ ایک طوطا ہے اور دوسرا خرگوش، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے بولتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آگے دیکھتا ہے کہ آگے بہت خطرناک رستہ آتا ہے۔ جب وہ آگے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر زمین میں سے کچھ سانپ نکل آتے ہیں جو سلطان پر حملہ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے سلطان ان سے بچتا ہے، اور پھر وہ آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے کا رستہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ طوطا اور خرگوش اور سلطان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جھرنے کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، تو اب اس کو کیسے ہٹایا جائے، تو طوطے کا ایک اور ساتھی طوطا ان کو ملتا ہے جو رسی کی مدد سے دوسری طرف کا رستہ بناتا ہے، اور سلطان اس رسی سے دوسری طرف پہنچتا ہے اور جھرنے کا جو راستہ بند ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر وہی لومڑی سے بولتا ہے کہ اب پانی آ چکا ہے، اب ہمارا جنگل ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جاندار کے لیے پانی کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سب جانور ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ بچوں، ایک بار کی بات ہے، بہت دور ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک فیملی رہتی تھی۔ ان کو بہت شوق تھا جنگل کے اندر رہنے کا۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم مرغیاں پال لیتے ہیں، اور انہوں نے مرغیاں پالیں، اور مرغیوں نے بہت سارے انڈے دیے، اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ ساتھ میں وہ اپنا گھر بھی بنا رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو دکھایا کہ یہ دیکھو مرغیوں نے کتنے انڈے دیے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ اس نے بولا
इतने सारे अंडे मुर्गियों ने दे दिए, अब हम ज़्यादा मुर्गियां रखेंगे। इतनी मुर्गियां पालने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो बहुत खुश हो रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि एक दिन जंगल से शेर आ गया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी सारी मुर्गियां वो शेर खा जाता है। फिर वो आपस में बात करते हैं कि हम उस शेर को मार डालेंगे। वो जंगल में शेर का शिकार करने चले जाते हैं, और जब शिकार करने जाते हैं तो उनको शेर बहुत मुश्किल से मिलता है और शेर का आमना सामना करते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद वो शेर को मार डालते हैं। शेर को मारने के बाद वो फिर अपने घर आते हैं और मुर्गियाँ पालते हैं। फिर दोबारा मुर्गियाँ अंडे देती हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वो फिर अपनी बीवी को बुलाकर लाता है, ये देखो कितने सारे अंडे मुर्गियों ने दे दिए, और बोलता है कि हम फिर इन मुर्गियों को पालेंगे। उसकी बीवी बोलती है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी मुर्गियाँ फिर इतनी ज़्यादा हो गईं। वो दोनों बहुत खुश थे और सोच रहे थे हम एक नया घर बना लें, और दोनों मिलकर एक घर बनाने लगे, और देखते ही देखते उन्होंने एक बहुत खूबसूरत घर बना लिया। फिर वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन अहमद, अली, सारा और जैनब ने फैसला किया कि वो करीब के जंगल की सैर के लिए जाएंगे। सब अपने बस्ते में खाने पीने की चीजें और पानी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बहुत खूबसूरत था। परिंदों की चहचहाहट, हरे भरे दरख्त और नर्म हुआ सबको खुश कर रही थी। अचानक अहमद ने एक पुराना और अजीब सा चिराग जमीन पर देखा। ये क्या है? अहमद ने हैरत से कहा, शायद ये जादुई चिराग हो। अली ने मजाक करते हुए कहा। सारा ने कहा, चलो उसे साफ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही अहमद ने चिराग को रगड़ा, एक धुआं उठा और एक बड़ा देव नमूदार हुआ। देव ने कहा, मैं जादुई चिराग का देव हूं। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। सब दोस्त हैरान रह गए। जैनब ने कहा, हमें सोच समझकर ख्वाहिश करनी चाहिए। पहली ख्वाहिश के तौर पर अली ने कहा, हम सब के लिए मजेदार खाने का इंतजाम हो। दियो ने हाथ हिलाया और सामने एक बड़ी मेज पर खाने की चीजें जाहिर हो गईं। सब खुशी से खाने लगे। जब खाने के बाद दियो ने दूसरी ख्वाहिश पूछी तो सारा ने कहा, जंगल के तमाम जानवरों के लिए एक महफूज जगह चाहिए जहां वो खुश रह सकें। दीव ने एक बार फिर जादू किया और जंगल में एक खूबसूरत जगह जाहिर हो गई जहां जानवर आराम से रह सकते थे। अब तीसरी ख्वाहिश का वक्त था। जैनब ने कहा, हम चाहते हैं कि ये चिराग दोबारा किसी जरूरतमंद के काम आए। दीव मुस्कुराया और कहा, तुम सब बहुत ज़हीन हो। तुमने अपनी ख्वाहिशों का अच्छा इस्तेमाल किया। ये चिराग दोबारा जंगल में छिप जाएगा ताकि किसी और की मदद कर सके। ये कहकर दीव गायब हो गया और चिराग वापस जमीन में दफन हो गया। दोस्तों ने खुशी से जंगल से वापसी की और अपनी मुहिम का जिक्र सबसे किया। उन्होंने सीखा कि जादुई चीजों का सही इस्तेमाल ही सबसे अहम होता है और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत परी जादुई जंगल में रहती थी। उसका नाम गलनाज था और वो अपनी जादुई ताकतों के लिए मशहूर थी। लेकिन गलनाज ने अपनी ताकतें खेलने और फजूल चीजों में जाया कर दें, जिसकी वजह से उसके जादू में कमी आने लगी। एक दिन गलनाज को पता चला कि अगर वो मजीद अपनी ताकतें जाया करती रही तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वो बहुत परेशान हुई और मदद के लिए जंगल के बुजुर्ग दरख्त के पास गई। बुजुर्ग दरख्त ने कहा, गलनाज, तुम्हें नेकी और अच्छे कामों की तरफ लौटना होगा, वरना तुम्हारी जादुई ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मायूस होकर गलनाज जंगल के एक पुराने कोने में जा बैठी। वहाँ उसे एक अजीब खिलौना गड़िया मिली जो बोल सकती थी। गड़िया ने गलनाज से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गलनाज ने हैरत से कहा, तुम एक गड़िया हो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? गड़िया ने जवाब दिया,
तुम अपनी ताकतें नेकी के कामों में इस्तेमाल करो, बीमार परिंदों की मदद करो, दरख्तों को जिंदा रखो और बच्चों की खुशियों का ख्याल करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी ताकतें दोबारा वापस आ जाएंगी। गलनाज ने गड़िया की बात मानी और उसके साथ सफर पर निकली। गलनाज ने गड़िया के साथ मिलकर जंगल के परिंदों का इलाज किया, पानी के खुश्क चश्मे दोबारा खोले और बच्चों के लिए एक खूबसूरत बाग बनाया। जब गलनाज ने ये सब अच्छे काम किए तो उसकी जादुई ताकतें आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगीं। जंगल के दरख्त और जानवर भी उसके शुक्र गुजार हो गए। एक दिन गड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि गलनाज, अब तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपनी ताकतें अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगी। मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तुम्हारी मेहनत ने सब कुछ मुमकिन बनाया। गलनाज ने गड़िया का शुक्रिया अदा किया और हमेशा नेकी का रास्ता अपनाने का वादा किया। अब गलनाज न सिर्फ एक जादुई परी थी, बल्कि जंगल की सबसे मेहरबान और महबूब शख्सियत भी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और सलाहियतों को हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुल्तान और ज़ैनब के जादुई घर की पहली मंजिल पर एक शानदार बाग था। इस बाग में हर तरह के खूबसूरत फूल थे जो न सिर्फ खुशबू देते थे बल्कि रोशनी भी बखेरते थे। हर फूल के अंदर एक छोटी सी कहानी छिपी हुई थी और जब कोई फूल खुलता तो उसकी कहानी सुनाई देती थी। ये बाग उनकी मोहब्बत का अकाश था। एक दिन सुल्तान और ज़ैनब ने देखा कि बाग के एक खास फूल की रोशनी मद्धम हो रही है। वो बहुत हैरान हुए क्योंकि ये फूल हमेशा चमकता रहता था। जब उन्होंने करीब जाकर फूल से पूछा तो मालूम हुआ कि ये मोहब्बत के जज्बात से कमजोर हो गया है। सुल्तान और ज़ैनब ने अपनी मोहब्बत और खुलूस से फूल की मदद करने का फैसला किया। दोनों ने फूल के करीब बैठकर अपने खूबसूरत लम्हे याद किए और अपने दिल की खुशियाँ उसके साथ बांटे। उनकी मोहब्बत की ताकत ने फूल को दोबारा रोशन कर दिया और पूरा बाग खुशबू और रोशनी से भर गया। इस दिन के बाद बाग के तमाम फूल उनकी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाते रहे। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान और उसका बाग। ये एक कहानी है सुल्तान की, जो कि छोटी उम्र में अपने परिंदों के साथ बागीचे में खेल रहा था। फिर वो बड़ा हो जाता है और अपनी शहज़ादी के साथ कुछ बातें करता है कि हमारा जो बाग है उसकी हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। वो शहज़ादी बहुत खुश होती है और कहती है ठीक है, हम मिलकर करेंगे। फिर वो अपने बाग की खूब हिफाजत करते हैं। उनको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, सेब, केले और बहुत अच्छे रेड कलर के अमरूद उनको बाग देता है। फिर शहज़ादी जाती है बाग में, एक फल तोड़ती है और वो देखती है कि बहुत अच्छा सेब है। वो देखती है कि सुल्तान को ये मैं सेब जाकर दिखाती हूँ। वो जाती है और सुल्तान को वो सेब दिखाती है और सुल्तान और शहज़ादी बहुत खुश होते हैं अपने फल देखकर और बाग की खूब हिफाजत करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे फल दिए। इस कहानी से ये पता चलता है कि मिलजुल कर काम करने से अल्लाह ताला बरकत डालता है। अच्छी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।